Hello and welcome, dear viewers, on the Litlight Global platform. Today, I am your host, Zakir Malik, and with me is my co host, Ariba Pirzada. Today, we'll be having a live interaction with the novelist, author Minal Maan. She's a brilliant writer. Her works have been published in various newspapers from Pakistan. She had also launched a it's yeah, it's actually a chronicle. Yeah, it's a chronicle, Pakistan Chronicle. So please, I will like to ask Miss Ariba Khyal, please start your interaction with Miss Minar. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam. I'm good, Ariba. How are you? Alhamdulillah, ma'am. So this was introduction of Minal, ma'am. She's a wonderful writer and a very wonderful person. So, ma'am, I want to ask you कि आप अपने बारे में हमारे viewers को बताएं कुछ. Like आपने writing कैसे start की and what inspired you? हम लोग सारे we start reading and writing वगैरह. So उससे like I did start writing back then, but like the seriously writing when I started that was in grade 8 and 9, but that was really different as compared to what I write now. That was sort of mainly fantasy, fan fiction basically. And now I've sort of started writing South Asian fiction, contemporary fiction, जिसे कहते हैं, basically realistic fiction set in Pakistan. That has started is there an issue internet का? No, no, ठीक है वैसे अच्छा. ठीक है आपका आ रहा है कुछ I can hear you. Okay, perfect. Yes, ma'am. There was issue थोड़ा सा, but Okay. now we can hear you. So, Okay. मैम, आपको किस राइटर ने इंस्पायर किया लिखने के लिए? लाइक लोगों के फेवरेट राइटर्स होते हैं, आप किसी की राइटिंग्स Yeah. पढ़ के इंस्पायर होते हो, तो who was your favorite? My favorite writer ever since I was a kid, I grew up reading Harry Potter, Percy Jackson वगैरह. तो the first inspiration that I had was J.K. Rowling. J.K. Rowling. But yeah, and Percy Jackson का Rick Riordan था, but those are fantasy. But when you talk about contemporary fiction, Pakistani writers, so I love Fatima Bhutto, I love Kamila Shamsi, I really love Muhammad Hanif and Mohsin Hamid. Okay. So, मैम, Yeah. अगर आपसे कहा जाए कि you have to choose just one author from them all, जो पाकिस्तानी राइटर्स में आपके फेवरेट है, तो who one will be that? तो वो कौन I सा feel है? like Mohsin Hamid. मोहसिन हामिद. तो मोहसिन Yeah. हामिद की क्या स्पेशलिटी है कि आपको वो ज्यादा पसंद है? I feel like because he kind of writes the books जिस तरह की मैं like पढ़ना चाहती हूँ, like I जी जी मौत स्मोक जो उसकी है, so जी he जी kind of takes up real problems, real लोगों के, like वो उसके characters mostly black and white नहीं होते, gray areas में होते हैं. So that's what I like because his characters are flawed, and because हम सारे like we're not perfect, nobody has like perfectly कोई बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं है. So that's what I like about his characters. हाँ, जैसे होता है ना, बहुत हाँ से ऑथर्स ऐसे होते हैं जो कोई ऐसा कैरेक्टर बना देते हैं जिससे रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो लाइक हाँ मोहसिन हामिद का exactly. ये कि उनसे आम इंसान भी ना रिलेट कर सकता है उनकी Yeah. कहानियों हाँ से, उनके कैरेक्टर्स हाँ से. yeah. हाँ. ओके. सो मैम, आपने न्यूज़पेपर्स में भी लिखा, लीडिंग मैगजीन्स में भी लिखा, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लाइक आपने अपने स्कूल में कोई मैगजीन वगैरह के जो होते हैं आते हैं, हाँ तो उनसे स्टार्ट किया या फिर पर्सनली यू yeah. कॉन्टेक्टेड एनी एडिटर या ऐसा कुछ?
नहीं, मैंने स्कूल से स्टार्ट किया था। आई वाज द डेप्यूटी हेड ऑफ माय लिटरेरी सोसाइटी ओ लेवल्स में, एंड देन ए लेवल्स में आई वाज द हेड ऑफ द लिटरेरी सोसाइटी। तो वी हैड टू लाइक मैंने आई पुट टुगेदर अ ईयर बुक एंड अ मैगजीन उधर से शुरू से। तो आई काइंड ऑफ गॉट इनटू इट वहां से। एंड देन यूनिवर्सिटी स्टार्टेड, तो बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था बिकॉज मुझे क्लासेस वगैरह को जगल वगैरह करना था। बट देन एंड में आके लाइक आई डिड स्टार्ट राइटिंग फॉर लाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन सही से खुद से। अच्छा, ठीक है। तो मैम, आपने करियर अपना चूज किया एज अ राइटर, एज अ ऑथर। ये आपका शुरू से ही था कि मुझे एक राइटर बनना है, या फिर आपने कोई करियर शिफ्ट लिया कि पहले आप कुछ और बनना चाहते थे एंड देन यू इनटू राइटिंग? नहीं, आई मेरा शुरू से काफी ज्यादा डिफरेंट उस पे था। लाइक बेसिकली आई एम फ्रीलांस कंटेंट राइटर भी आजकल। जी जी। एंड जो मेरी डिग्री है दैट्स इन बिजनेस। तो या सो बेसिकली आई लाइक मैं साइड पे कंटेंट राइटिंग वगैरह भी करती हूँ, एंड आई राइट लाइक जब भी टाइम वगैरह मिल जाए। लाइक अब तो काफी लाइक आई हैव अ प्रॉपर रूटीन के लाइक आई हैव टेकन टाइम आउट कि अच्छा ये भी करना है। बट बेसिकली जो पीछे से जो बैकग्राउंड था दैट वाजंट इन राइटिंग। ऑब्वियसली लाइक मेरे कोर्सेज वगैरह थे लिटरेचर के, क्रिएटिव राइटिंग के थे, but that wasn't always the plan. Like writing was something I always did want to do, but like I didn't take it as a profession abhi like till until now. अच्छा, तो मैम, ये जो आपका नॉवल है जो आपने लिखा, और टेंटिव Hmm. सोल्स, तो इसके पीछे आपका क्या थॉट था? लाइक किसी रियल कहानी से आप इंस्पायर हुई थी, या ये पूरा का पूरा एक फिक्शन है जो आपने क्रिएट किया? नहीं है फिक्शन, बट बेसिकली जो इसमें कैरेक्टर्स हैं उनकी जो फीलिंग्स वगैरह हैं दैट्स समथिंग आई फील लाइक हम सारे वी कैन रिलेट टू देम। बिकॉज जो मेरी फीमेल लीड है सहर, शी बिलोंग्स टू अ विलेज, ठीक है, जहाँ पे लाइक देयर आर दी स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स वगैरह। एंड आई फील लाइक these are the stories that need to be told जो हमें पता होती हैं, because हम सारों के घर we have help at home, तो if we just talk to them they have a lot of stories to tell. तो I feel like this is something जो मतलब it's pretty common. So I just took that topic and I sort of fictionalized the character and I fictionalized certain events जो कि like I know that those events actually happen, but थोड़ा सा उनको like exaggerate थोड़ा सा करके I wouldn't say exaggerate because these are all things that actually happen to people, but I kind of gave it like a voice, I would say. मैम, जो नॉवल आपने लिखा है उसकी रेटिंग भी गुड रीड्स पे माशाल्लाह बहुत अच्छी है। Yeah, तो thank you. आपने जब ये नॉवल लिखा था तो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आपने अपनाया था एक नॉवल को लिखने का, या यू जस्ट स्टार्टेड राइटिंग? नहीं, I kind of जो this started as a short story at first, जो मेरा पहला chapter है अहमद के point of view से, that was जी जी। supposed to be a short story पहले. um, so I wrote that because मुझे वैसे एक I got this idea and I wanted to sort of explore that character. So it started as a short story, but when I wrote that, तो उसके बाद से like I kind of felt like no, there could be more to the story, there could be more to the character वगैरह, like backstory वगैरह. So then I kind of like I took a break from it थोड़ा सा, and then I started like piecing the story together आहिस्ता आहिस्ता. And ओके like आहिस्ता आहिस्ता सहर का character kind of took form in my mind, and then like the story sort of came together खुद. ओके। मैम, जब आपने अपने कैरेक्टर्स लिखे थे, जैसे आपने अहमद का कैरेक्टर लिखा है द गर्ल फ्रॉम विलेज, तो जब आपने कैरेक्टर्स लिखे, बहुत से ऑथर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने जब कार्लोस रुइज ज़ाफ़ॉन की द शैडो ऑफ द विंड पढ़ी थी, Yeah. तो उसमें मुझे आई फेल्ट के जो भी कैरेक्टर है ना, भले एक छोटा कैरेक्टर ही है, उस कैरेक्टर में भी ऑथर ने अपना एक हिस्सा दिया हुआ, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा दिया हुआ। तो बहुत से ऑथर्स ऐसा करते हैं, लाइक उनके Yeah. जब आप मेन कैरेक्टर्स में तो ये ज्यादा होता है, बाकी ये द शैडो ऑफ द विंड इज एक्सेप्शन कि उसमें तकरीबन सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें ऑथर ने ना अपनी छाप छोड़ी हुई है। तो आप क्या ऐसा करती हैं किसी मैन कैरेक्टर के साथ या फिर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ कहानी में? मेरे ख्याल से लाइक आई फील लाइक हो जाते हैं खुद ही, इवन इफ वी डोंट मीन टू डू इट, कुछ ना कुछ आ जाते हैं अपनी पर्सनालिटी का अंदर उसमें। तो लाइक इवन तो मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं अपनी उसके अंदर कुछ डालती, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में से वो हो रहा था, बिकॉज जो राइटर की जो अपनी पर्सनालिटी है वो आ जाती है कैरेक्टर्स के अंदर, थोड़ी सी, पूरी पर्सनालिटी नहीं, लाइक सर्टेन क्वालिटीज आ जाती हैं। तो वो मैंने खुद लाइक शहर में कुछ क्वालिटीज मैंने वो थी जो मैंने नोटिस किया था कि अच्छा ये मेरी अपनी पर्सनालिटी से ट्रांसफर हो रही है। एंड इवन अहमद के साथ भी इसी तरह हुआ था कि लाइक देयर आर सर्टेन पॉइंट्स
जो मेरी अपनी उसमें से ट्रांसफर हुए हैं, बट नॉट द इवेंट्स, जस्ट द पर्सनैलिटी ट्रेट्स आई से। ओके, तो मैम आपकी जो ये कहानी है, किताब है और टेंटेड सोल्स, ये जो नॉवल है, तो अगर लोग ऑब्वियसली जब कोई किताब पढ़ते हैं तो वो पहले पूछते हैं कि ये किस बारे में है, इसमें इसका मेन थीम क्या है, तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? Basically, I'd say it's about getting over your own getting over your own self and sort of becoming a better person. It's about hope, and it's about changing for the better, because both of my characters, they are fed up with themselves. They don't like the way they are, because even with Ahmed, he's forced to watch as like because he's born in a world of privilege, like his father is really corrupt, he's a politician, and he's into like stuff that he doesn't necessarily like, but he has to put up with it, Ahmed, because like he's been born into that family, so he doesn't really have a choice उस वक्त तक, like अगर आपको एक चीज मिल रही है अपनी फैमिली से और आपको पता है वो गलत है, बट आपको उससे फायदा हो रहा है, so it's really hard for you to sort of resist it. So he wants to resist it, but he doesn't, and he hates himself for that. So then there's this life-changing event that kind of happens, and then he kind of gets this into his head कि नहीं, I need to change. He wants to change. And even Seher, उसके साथ भी यही था, because she's forced to watch as like society around her, people around her, they live in these sort of rigid social norms. They live under those norms, and she wants to be different. She wants to do something about it, but she knows that she's kind of helpless in a way. So uske liye bhi, like, there is a trigger point that she kind of like, after that she kind of has to like stand up for herself. लाइक ये मैम ऐसा है कि जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक जरूरी होती है, इवन इफ योर फैमिली इज डूइंग रॉन्ग, बट यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दैट, क्योंकि आपको सही के साथ खड़े होना। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आई विल रेकमेंड एवरीवन टू रीड अ नॉवेल बाय मिनाल मैम, एंड एज यू नो शी इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन। आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। और मैम जब राइटर्स नॉवेल लिखते हैं तो उनके साथ मोस्टली आई माई सेल्फ व्हेन राइट शॉर्ट स्टोरीज, तो मोस्टली ये होता है कि आई राइट अ डायलॉग, फिर ये होता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, अब इसको जो है ना बिल्कुल खत्म। अब जब डायलॉग नया लिखने की बारी आती है, पूरा सीन चेंज हो जाता है, फिर होता है नहीं इसको क्रिएट करते इसको। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसा फनी एक्सपीरियंस जो राइटिंग बुक जब आप किताब लिखती थी? मेरे साथ बहुत ज्यादा इस तरह के हुए, बिकॉज आई डिडंट हैव अ प्रोफेशनल एडिटर, मैं खुद ही कर रही थी सारा कुछ। तो ऑब्वियसली लाइक पहला ड्राफ्ट जो मेरा था, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू द फाइनल ड्राफ्ट जो अब हुआ है, मतलब जो पब्लिश हुआ है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैंने मतलब बिल्कुल निकाल दी थी, और उसके बाद लाइक आई हैड टू ऐड न्यू एलिमेंट्स टू इट। तो वो स्टोरी को कम्प्लीटली लाइक बीच में, बिकॉज मेरा आई रिमेम्बर देयर वर सर्टेन प्लॉट पॉइंट्स जो मुझे बिल्कुल चेंज करने पड़े थे बाद में, जब मैं सेकेंड टाइम रीड कर रही थी। तो वो इसी तरह हुआ था। एंड इवन विद डायलॉग्स, बिकॉज डायलॉग्स में इस तरह होता है कि यू काइंड ऑफ दे हैव टू रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर्स पर्सनालिटी, आईड से। तो जब वो आप देखते हो तो यू हैव टू थिंक वुड माई कैरेक्टर एक्चुअली से दिस, लाइक उसकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है या नहीं। तो वो मेरे साथ काफी दफा इस तरह हुआ था कि आई हैड टू चेंज देम अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। ओके, तो मैम जब आप बुक लिख रहे थे तो ऑब्वियसली होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके साथ हम शेयर कर रहे होते हैं कि भाई मैं किताब लिख रही हूँ। तो क्या फ्रेंड्स से आपको सपोर्ट मिली थी, या दे वर लाइक के अब आप किताब लिखेंगी, जैसे क्रिटिसिज्म फ्रेंड्स से एक मिलता है ना इंसान को कि अब आप राइटर बनेंगी, तो ऐसा हुआ था आपके साथ, या फिर आपको सपोर्ट किया अपने फ्रेंड्स ने? नहीं, मुझे बहुत सपोर्ट किया था, शुक्र है। लाइक आई हैव रियली गुड फ्रेंड्स हु वुड लाइक रियली सपोर्ट। मैं दिखाती थी एंड दे वुड सी के लाइक बिकॉज लाइक आई सेड प्रोफेशनल एडिटर नहीं था, तो माय फ्रेंड्स वर माय एडिटर्स बेसिकली। तो नॉट एग्जैक्टली एडिटर्स, बट दे पॉइंट आउट सर्टेन थिंग्स कि अच्छा इसको देख लो, एंड देन लाइक जिस तरह। और मेरा एक मसला है कि लाइक आई मेक टाइपिंग में बहुत ज्यादा तेज कर रही होती है, तो बीच में कोई वो हो जाती है, तो they were really back to। ओके, तो मैम अगर आपकी फैमिली से भी आपको फिर सपोर्ट ही मिली थी एक बुक लिखने पे, बेसिकली क्योंकि आप पॉलिटिक्स जैसी किसी चीज के साथ जब करते हो ना काम, उसको लेके आप अपनी कहानी में डालते हो, तो मोस्टली पीपल आर लाइक के क्या पॉलिटिक्स में आप जो है ना कर रहे हो, उसके साथ कहीं बैन ना हो जाए, ये मसला ना हो जाए, क्योंकि अभी भी आप देखते हो पाकिस्तान में जब पॉलिटिक्स पे कोई ड्रामा बनता है, पॉलिटिशियंस पे बनता है, तो वो बैन हो जाता है। बहुत से ऐसे ड्रामा बैन हुए, या बुक्स जो होती हैं
एक दो बलूचिस्तान पे जब लिखी है राइटर्स ने तो फिर वो बैन करा दी गई है। Exactly. तो आपको क्या कोई ऐसा कोई फियर था कि मैं लिख रही हूँ तो ये कहीं बैन ना हो जाए बिकॉज इट्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल? नहीं, मुझे fear था definitely because like मैं sort of like थोड़ा सा sensitive topic को and I was just showing कि जो असल में हो रहा है, like stuff we know that happens. तो मुझे थोड़ा सा था कि like you know, but as far as family is concerned मैंने किसी को बताया नहीं हुआ था कि मैं क्या लिख रही अच्छा। हूँ ओके। because like because मेरा एक ही होता है कि like I can only show my work to a limited amount of people. ठीक है, तो ओके। अगर मैं बता देती तो वो हर कोई फिर पूछना शुरू हो जाता है कि like अच्छा हमें फर्स्ट ड्राफ्ट दिखाओ and I can't show until like second draft का like to like you know everyone. तो इसलिए फिर मैंने इतना ज्यादा बताया ही नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत like I did used to tell them and supportive of that, but they didn't actually know the whole story came out. अच्छा। तो we मैम हाँ. जी सर आप कहें। Maria Anam is saying, who is your inspiration in your own life? I honestly I'd say my mother because she's a really amazing person and she's a really amazing woman, I'd say, and she in sort of inculcated the love of books in me from a really young age. Like जब से मैं छोटी थी तो she bought me all of these books and it Brighton की because वो खुद पढ़ती थी छोटे होते से. तो I remember मैं like I was 6 years I'd say. तो उस वक्त से like मैं छोटी छोटी novels ना like she used to buy them for me शुरू से. तो वो I'd say that was the biggest inspiration and that's the reason I kind of write up. One more thing she's saying, she's asking, where do you see yourself in next 5 years as you have Uh, writing as your career? hmm. Honestly, I'd say I'm working on another sort of book आजकल, and then I have plans for another book as well. So like there are two more books that I would like to see published in the next 5 years. So apart from that, as far as my career and everything else is concerned, so abhi I just consider writing as my career sort of because like COVID के बाद तो like there are no options इतनी ज़्यादा except freelancing, तो वो तो मैं कर रही हूँ. But apart from that, I just see myself with two of my like the next two books coming out, inshallah. इंशाल्लाह। एंड मैम Yeah. यहाँ पे एक Yeah. और कमेंट भी है साकिब हाँ. मुनीर साहब का। वो पूछ रहे हैं कि हाँ. आप राइटर्स को कोई मैसेज देना चाहें, कोई उनको टिप्स देना चाहें कि हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स को। I'd say कि just don't give up. Like this is what I always say. कि no matter how much like people sort of try to put you down and they criticize you and they tell you कि अच्छा इसमें career नहीं है. Career इतना ज़्यादा कुछ खास like because हम unless you're like really famous like J.K. Rowling वगैरह, there's not much money in it. ठीक है. So you do need a side job with it, but I would still say कि just don't stop because इसमें से जो आपको recognition मिलती है and the self actualization that you feel, that I feel like there are only few other paths that actually give you that. So I would say just keep going. अगर कुछ भी लिखना है, like just don't stop. Even if you have writer's block, just try to write something, and just don't let like discouragement by other people sort of put you down. मैम That's आप Yeah. एज अ राइटर क्या सोचती हैं कि एक राइटर का माशरे में आप देखिए बहुत से लोग होते हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ पीपल, देयर आर मल्टीपल फील्ड्स जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं और वो सोसाइटी को बनाते हैं। तो एक राइटर Yeah. का क्या रोल होता है सोसाइटी को बनाने में? I feel like काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है because you can actually change people's ideals if अगर आप सही तरह लिखो. If you put them in a book, like say if they can relate to it, so they can actually change people's mindsets, which is I feel like which is really important because काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं because our society is like there are certain things that do need to change, and I feel like writers kind of can play a major part in that with the characters they write, with the stories they write, like जो ideas हम लोग books में लिखते हैं. And I feel like those should be good messages, like which people can like you know sort of think about and sort of which can help them become better people. ओके मैम, तो यहाँ पे हमारे साथ जाकिर मलिक साहब भी हैं, वो भी खुद एक राइटर हैं। तो सर Okay. आप क्या कहना चाहेंगे एज अ राइटर आप क्या क्या कर सकते हो? एक तो आप थॉट चेंज कर सकते हो और आप एज अ राइटर क्या कर सकते हो? लाइक व्हाई राइटिंग इज सो इम्पोर्टेंट?
बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन, व्हाई राइटिंग इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों लिखें, व्हाई टू रीड बुक्स व्हेन वी हैव लाइफ, वी हैव लाइफ एंड बहुत सारे हाँ, स्टाइल है उनसे हम सीख सकते हैं, व्हाई टू रीड बुक्स। तो सर आपसे हम्म, सवाल ये कि व्हाई टू रीड बुक्स एंड व्हाई टू राइट, इसकी जरूरत क्या है? हम्म, Yeah, see, if you want to change the society, then you should have the material in you. When you will हम्म, have the stuff in you, when you will be having a lot of knowledge, only then you can change the society. yeah, It's only then, like the Vinal ma'am said, that you need to read a lot of books. जब आप बहुत सारी बुक्स को पढ़ेंगे तो आप उसका निचोड़ जो होता है, then हम्म, only you can put that thing, मतलब आपकी सोसाइटी जो है, like हमारी सोसाइटी जो है, या विलेज लेवल पे या अर्बन लेवल पे, yeah, तो तब जाके हम जो एक वी हैव जो यूथ है, या वो जो हम्म, हमारे बहुत सारे एज है, ताकि हम उनको उनकी लेवल पे एडजस्ट कर सके। तो हम्म, दैट इज व्हाई intellectuality is very much necessary. yeah, Like if there is someone writing the fiction, डेफिनेटली उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो वो कैरेक्टर्स को देखे, उसके बाद कौन से कैरेक्टर को कौन सा मतलब काम कैसे उसको आपको प्रेजेंट करोगे, हाउ विल यू हम्म, एग्जेजरेट, इट्स नॉट जस्ट एग्जेजरेट कि आप उनकी ज्यादा तारीफ करेंगे। बहुत सारी exactly, चीजें हैं यू कैन यू कैन गिव द whether you will be having the non-human characters as well। हम्म, तो कहीं होता है कि ऑनेस्टी को भी आप एक जुबान जैसे दे सकते हो। तो yeah, एक सोसाइटी को चेंज करने के लिए इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो, एंड देन यू शुड हम्म, हैव लैंग्वेज, यू शुड हैव मास्टरी और लैंग्वेज। तो yeah, it's not necessary that you will get somebody who will edit your book, not necessary. हम्म, But if you are हम्म, having good hold on your language, then you can with the help of your friends and with the help of, you will definitely be having someone in your society, or you will definitely be having someone in your family who can help हम्म, you to actually figure out where you need to improvise and all that। हम्म, हाँ, ओके, तो मैम आपसे क्वेश्चन ये है कि हम्म, हम कहते हैं कि एक राइटर बनने के लिए ये भी करना होगा, यू हैव टू रीड बुक्स, यू हैव टू प्रैक्टिस थिंग्स, लेकिन आपके नजदीक एक राइटर बनने के लिए कौन से चंद एलिमेंट्स होते हैं एक बुक लिखने के लिए जो लाजमी होते हम्म। हैं? I feel like जिस तरह आपने कहा you should read books. That's the same thing. I would say read as much as you can. And because reading say you kind of get different ideas, you get exposed to different writers ke writing styles, and then you kind of end up because your writing style is unique only to you. But reading other people's writing styles kind of does help you figure out exactly what your writing style is, because every person has a different tone of voice, different style hota hai. But I feel like if you read other people's work, so it not only exposes you to different ideas, but different writing styles se bhi aap, like you get familiarized with, and then you can figure out your own style as well. Uske alawa, I feel like practice is kind of important, but not practice as in like, you know, the routine bana lo, and then like जैसा school का काम होता है कि like नहीं इस time जरूर करना है, नहीं, just do it whenever you feel like अभी like you can write something, or you feel comfortable writing something. That's what I would say. अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। व्हेन बीइंग अ राइटर एक आसान काम नहीं होता, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम इन टू Yeah, फील्ड ऑफ राइटिंग लाइक पिछले yeah. एक साल से। तो Hmm. बीइंग अ राइटर आसान कैसे नहीं होता जब आप मेडिकल का फील्ड चूज कर लेते हो या कोई और Yeah, ऐसी फील्ड huh. जिसकी ना बहुत Yeah. इन डिमांड होती है। तो Hmm. जब आप राइटिंग की फील्ड चूज करते हो तो पहली तो जो चीज पहले जो आपको Yeah. पोस्ट करते हैं, दिस इज योर फैमिली, कि अब Yeah. बनना है राइटर। तो हाँ, राइटर्स को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपने you know, encourage भी जी करते हैं। जी जी, तो हम हम्म, उनको पहले ही बता देते हैं कि भाई राइटर बनोगे, कोई पढ़ता तो है नहीं, बिकॉज हम ना हम्म, अपना इर्द गिर्द ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे yeah. बुक रीडिंग किसी को पसंद नहीं है, जहाँ पे हम्म, कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, ऑथर्स कौन है हम्म, पता नहीं है। तो हम्म, बीइंग राइटर एंड फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आप उठ के जो है ना हम्म, अपनी एक फील्ड अच्छी भली मेडिकल की छोड़ दो और उसके बाद आप हम्म, राइटिंग की फील्ड में आ रहे हो, तो ये बहुत yeah, मुश्किल होता है। तो yeah. आपने क्या अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोड़ आया कि जहाँ आपको लगा हो कि ये फैसला गलत ना हो जाए किताब लिखने का या फिर राइटर बनने का? Uh, Honestly आया था, because like you said कि लोग पढ़ते नहीं है इतना ज्यादा, like गारंटी नहीं होती इतनी ज्यादा कि लोग पढ़ेंगे, और like इससे इनकम वगैरह स्टडी इनकम होगी। साइड इनकम के लिए बिल्कुल ठीक है, बट आई फील लाइक राइटिंग फॉर मनी एंड राइटिंग वैसे आर टू डिफरेंट थिंग्स। लाइक अगर आप वैसे देखो ना,
because even if you just write for yourself, like वैसे खुद के लिए, तो even that's really good कि like जब time मिला लिख लिए, and if you have like a steady like degree in your hand साथ साथ, तो that's a really good idea, because like that's like your safe thing, like fallback I'd say, कि like एक साथ अगर डिग्री है हाथ में तो दैट्स इवन बेटर. बट अगर वैसे भी like if you like अगर हम लोग राइटर्स को प्रॉपर सपोर्ट दें, encouragement दें प्रॉपर, और like रीडिंग कल्चर वगैरह सारा अपना मतलब सही तरह करें, तो आई फील लाइक वी कैन डेफिनेटली rely on writing as a career as well. लेकिन उसके लिए आई फील लाइक काफी टाइम की जरूरत है, काफी ज्यादा लाइक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस की जरूरत है, जो अभी तक इतनी ज्यादा लाइक है नहीं. बट अगर जी वो आ मैम. जाती है, हाँ जी 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 आप कहें. या अगर वो आ जाती है, एंड इफ लाइक वी फील लाइक कि अच्छा अब बिल्कुल ठीक है, एंड पीपल आर एक्चुअली रीडिंग बुक्स और वो सारा कुछ हो रहा है, तो आई फील लाइक राइटिंग एज अ करियर इन इटसेल्फ इज रियली लाइक इट्स इनफ. मैम अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे राइटिंग एज अ करियर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप मुश्किल है, फॉरेन सही कंट्रीज में में कह जाओ रही तो वहाँ है, हूँ. क्योंकि वहाँ बहुत सारे पब्लिशिंग हाँ हाउसेस हैं. लेकिन या जब पाकिस्तान की बात आ जाती है या ऐसे इलाके जहाँ पे राइटर्स की इतनी वैल्यू नहीं, तो वहाँ एज अ करियर जब आप राइटिंग को चूज करते हो तो ये भी होता है कि आप बगावत कर रहे हो ना फैमिली से, आपको एग्जैक्टली. सोचना भी चाहिए. क्योंकि फिर लोगों का चला जाता है. मंटो साहब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल यस. पर्सनैलिटी हाँ है, हाँ तो उनका ये होता है कि मंटो साहब वाला हशर होना है सबका. लेकिन अगर हाँ देखा हाँ जाए तो मंटो साहब ने अपनी जिंदगी में उनको सिर्फ क्रिटिसिज्म फेस नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे सराहने एग्जैक्टली, वाले भी बहुत अच्छा उनके भी थे. किया था. हाँ. जी. तो आपके मंटो साहब के बारे में क्या, आपने उनको पढ़ा होगा ऑब्वियसली, तो आपके हाँ क्या ख्यालात हैं कि हु इज मंटो एक्चुअली? नहीं, honestly personally I love Manto. like मेरा he's one of my favorite writers. और like हाँ कुछ ना कुछ controversial बातें हैं, like वो हर I feel like every because हर कोई perfect तो नहीं हो सकता ना, everyone has flaws. आजकल भी अगर हम देखें तो nobody is like actually like perfect, वैसे तो कोई है ही नहीं. तो he did have his flaws, but I personally I love him as a writer. I love his stories, I love his writing style, जिस तरह वो sarcastic और satire जो उनका सारा है, तो I personally he's a really good writer for me. मैम मंटो का कोई ऐसा अफसाना जो आप बहुत पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो? मेरा I'll have to think for a minute, sorry, because like मुझे उसके like I like pretty much everything. Toba Takes Singh तो for sure, because जिस तरह वो like उन्हें पूरा Yes. partition को वो सारा वो जी जी. asylum में उसने सेट करके वो किया था, I loved that. और मैं उनकी नॉन फिक्शन भी काफी ज्यादा, बिकॉज उन्होंने एक लिखी है अबाउट कायदे आजम के जो ड्राइवर है थे, तो he talked to him and he kind of wrote about his life, और जिस तरह he got hired by मोहम्मद अली जिन्ना, वो वाला सारा कुछ. I loved that too, because like you know personally I'm really fascinated with like you know history. तो वो उसमें but then history का भी like I love reading personal accounts of history. तो that was really amazing for me to read कि like उसमें personally पता चल रहा था कि how उनकी रूटीन वगैरह कैसे थी जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की and everything. So जी yeah. मैम, तो मंटो को जहाँ तक पढ़ा है, मंटो साहब का उन जितने भी उनके अफसाने मैंने अब तक पढ़े हैं, तो उनमें अशात का खात्मा एक उनका अफसाना है. कौन सा? वो Sorry. मुझे बहुत पसंद है. बादशाह का खात्मा उनका एक अफसाना है. हाँ 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 yeah, वो मुझे बहुत पसंद है. उसमें क्या है कि उसमें मर्द और औरत की जो एक साइकोलॉजी है ना, वो भी बयान की गई है. फिर उसमें मर्द की जिद, उसकी एक्सपेक्टेशंस के मैं मोहब्बत कबूल करूंगा तो औरत की मैंने खुद भी करनी. exactly तो दिस exactly इज द हाँ थिंग. yes मंटो वाज नॉट ओनली अ गुड राइटर बट ही वाज अ वेरी गुड एंड डीप ऑब्जर्वर एज वेल. वो he was दूर बैठे चीजों को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते थे, एंड देन ही यूज्ड टू राइट इट इन अ फॉर्म. हाँ और मैम आपको क्या लगता है कि जैसे मंटो की बहुत ही ब्लंट लैंग्वेज थी, लाइक सीधी बात कर देते थे, तो वो yeah क्या ठीक है? क्योंकि एक दफा उन्हें फैज साहब ने कह दिया था कि जो है ना yeah मंटो का अफसाना जो है वो मयार पे नहीं उतरता, लिटरेचर के मयार पे. तो मंटो साहब नाराज हो गए, कहते हैं हाँ क्यों कहा? क्योंकि उन पे yeah केस चल रहा था, उनके अफसाने हाँ ठंडा पे कि ये yeah फहश है. हाँ लेकिन ठंड जी फैज साहब ने कह दिया कि नहीं, फहश नहीं है ये, दरअसल ना लिटरेचर के मयार पे नहीं उतरता. तो मंटो साहब को गुस्सा आ गया. तो आपको क्या लगता है कि क्या मंटो वाकई ऐसा है कि मंटो साहब के अफसाने लिटरेचर के मयार पे पूरे नहीं उतरते, या हम समझ नहीं पाते उनको? हम मेरे ख्याल से हम समझ नहीं पाते, लिटरेचर के मयार पे वो उतरते हैं, बट
आई फील लाइक हर किसी का अपना अपना प्रेफरेंस होती है लिटरेचर की। लाइक ठंडा गोश्त से मुझे खुद थोड़ा सा वो थे इश्यूज क्योंकि मुझे लाइक राइटिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज वो ऑब्वियसली मंटो साहब लाइक वो बहुत अच्छे राइटर हैं, एंड इवन इफ ही इज ब्लंट तो मुझे उनकी ब्लंटनेस अच्छी लगती है बेसिकली। बट कुछ स्टोरीज से जिस तरह ठंडा गोश्त से लाइक आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज कंट्रोवर्शियल एंड व्हाई पीपल सॉर्ट ऑफ सेड कि ये फहाश है और व्हाटएवर। बट एज अ राइटर एंड एज अ पर्सन तो लाइक आई फील लाइक लिटरेचर का उससे कोई आई फील लाइक लिटरेचर का ताल्लुक नहीं है विद थिंग्स यू राइट। उसका तो इट्स जस्ट अबाउट द राइटिंग स्टाइल एंड द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, राइट? जी लाइक तो इन मतलब माय मंटो ओपिनियन। साहब हाँ। की जो लैंग्वेज है बेसिकली उस अफसाने में जिस हम्म। तरह से उन्होंने बात की है, तो हाँ। दिस इज क्वाइट हाँ, डिस्टर्बिंग, क्योंकि आप नॉर्मली किताबों में नहीं पढ़ते ऐसा। नॉर्मली जब आप बुक नहीं पढ़ते हो तो पढ़ते। उसमें हाँ। ना एक बहुत अच्छे से या उसको एक कवर अप किया हुआ या होता है लैंग्वेज को। हाँ। इवन जब आप हाँ। बहुत से शायरों की शायरी पढ़ते हो तो उन्होंने भी की है। बट मंटो या साहब क्या कहते हैं, लेकिन मंटो साहब कहते हैं मैं रैपिंग नहीं करता किसी भी चीज की, मैं सीधी या बोल देता हूँ। हाँ। बाकी जो शायर साहब हाँ। है, आप उनकी हाँ, which is शायरियों की something I डीप में आपको actually किताब, admire। हाँ। जी, तो उनकी शायरी के डीप में हाँ। जाओ या उनके जो जुमले या वो इस्तेमाल करते हैं मीठी जुबान में, तो उनके डीप हम्म। में जो मीनिंग वो ही निकलनी है। हम्म। बट मंटो साहब यूज्ड टू हम्म। टॉक इन द लैंग्वेज जो वो सुनते थे कि लोग इसमें बात करते, तो जो उनको इसी सुनते थे। लैंग्वेज में या समझा। ठीक, तो मैम आपका उर्दू या ऑथर्स जो है, उर्दू लिटरेचर भी एक बहुत वास्ट और रिच है, तो उर्दू में से काफी। आप मंटो साहब के अलावा आपका कोई फेवरेट हम्म। ऑथर, आपकी कोई ऐसी फेवरेट मुसन्निफा जो हो? इसमें चुगताई, अ, वो मुझे बहुत पसंद है। और उनका भी मंटो असमत, साहब के साथ लाइक, हाँ, असमत जी 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 चुगताई। या उनका भी जो मैं यही, क्योंकि उनका भी यही था ना कि वो मंटो साहब पाकिस्तान आ गए थे एंड वो उधर थी, कुछ इस तरह का हुआ था। तो दैट वाज रियली fascinating for me too, and I love like उनकी stories as well। मैम आप पॉपुलर फिक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि पॉपुलर फिक्शन आजकल पाकिस्तान में Really enjoyed खवातीन that too। में, जी बच्चों मतलब बच्चियों में जो टीनेजर्स हैं उनमें जैसे नम्रा अहमद हो गई, उमैरा साहिबा हो गई हैं, फिर सुमेरा हमीद सॉरी, भी अब हैं। फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है? जी मैम थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है आपकी साइड से। जाकिर सर अ, आपके, जी जी मैम, मैं वही अपना देख रही हूँ इंटरनेट के सही है, यानी जी मेरी जी तो आ रही है पूरी। जी, जब तक हम या सर जाकिर से बात कर लेते हैं, सर आपका हम्म। क्या कहना है उर्दू पॉपुलर फिक्शन के बारे में, या जो इंग्लिश पॉपुलर फिक्शन होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इज इट गुड टू राइट इन अ वे कि जिसमें आप तनकीद भी कर सकते हो माशरे पे, इज इट गुड, या फिर क्लासिक्स जो होते हैं ना हमारे टिपिकल क्लासिक्स जिनकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ होती है, तो वो ज्यादा बेटर वे में क्लासिकल राइटर्स कन्वे करते हैं, या फिर जो पॉपुलर फिक्शन राइटर्स होते हैं उनका मैसेज इजीली कन्वे हो सकता है? डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि जो पॉपुलर फिक्शन राइटर्स है इस वक्त के, बिकॉज जब हम पढ़ेंगे कोई भी फिक्शन हो या कोई भी लिटरेचर, कोई भी जैनर हम लें, तो ये एक समाज का जो है ना एक कैरिकेचर जैसा होता है। तो इट रिफ्लेक्ट्स आवर आवर सोसाइटी, वेयर लाइज द डिफरेंस, कहाँ प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। तो वैसे लिटरेचर जो है ना वो हिस्ट्री, वो स्टेज के हिसाब से चलती है। तो पहले जब हम पढ़ते थे कि क्लासिकल इट वाज रोमांटिसिज्म, तो आज रोमांटिसिज्म की जरूरत तो है नहीं। वी हैव पोस्ट मॉडर्न, एंड देयर आर सो हम्म। मेनी चैलेंजेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू कन्वे टू द रीडर्स। तो दैट इज वाई कभी ना कभी कभी क्या है ना कि कुछ ऑथर्स जो हैं वो पिछले जमाने के आइडियाज को लेके चलते हैं, तो तब जाके प्रॉब्लम ये आ जाती है कि देयर रिमेन्स इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, तो आज के जमाने के वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादातर उनको पढ़ते नहीं है। तो बेहतर ये है कि जो नए नए ट्रेंड्स आते हैं, लाइक वी हैव इस्लामोफोबिया एंड सो मेनी थिंग्स इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट एज वेल, तो वी कैन टेक दोज थिंग्स एंड वी कैन राइट ऑन देम। या हमारे समाज में लाइक देयर इज रेप कल्चर, वी कैन से दैट। या फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म एक तरफ से फेमिनिज्म तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर फेमिनिज्म को देखें तो देयर आर सो मेनी फ्लॉज इन इट। तो डेफिनेटली अगर हम लिटरेचर को साथ लेके चलेंगे और एक और रीडिंग कल्चर अच्छा सा बने, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सोसाइटी में है वो कर्व हो जाएंगी। तो बेहतर ये कि पॉपुलर फिक्शन जो है वो ही पढ़ें। तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऑथर्स ऐसे कि वो ज्यादातर थिंग्स को एग्जैजरेट करके, लाइक देयर आर सो मेनी, वी कॉल दैट, आई विल से दैट दैट इज सम काइंड ऑफ अ पोर्नोग्राफी,
that we read in so many authors, कुछ ऐसा होता है, तो definitely that is not necessary, लेकिन है उन चीजों को भी एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन in a different way. So that is what I can say about it. मैम आप क्या कहना चाहेंगी कि व्हाट यू विल प्रेफर एज अ रीडर, एक क्लासिकल फिक्शन या फिर पॉपुलर फिक्शन? I kind of like both. Like मैं classical fiction भी like I love उस थे, especially with classical literature authors, like जो पुराने जो इंग्लिश के पुराने राइटर्स हैं, जैसा डिकिंस है या जेन ऑस्टिन है, आई पर्सनली लव हर, और वो वाला टाइम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उस टाइम के बारे में पढ़ना. बट उसके साथ साथ आपको लाइक मुझे प्रेजेंट डे की भी लाइक आई लव रीडिंग पॉपुलर फिक्शन एज वेल. तो आई फील लाइक दोनों की अपनी अपनी जगह है. बट कुछ लोगों का हाँ प्रेफरेंस होती है कि लाइक वो सिर्फ क्लासिकल को प्रेफर करते हैं या जी सिर्फ जी, पॉपुलर को. लेकिन मैम देखा जाए अगर एज अ रीडर तो मैम कैन यू हियर मी? जी या आई कैन मैम, हियर यू. अगर एज अ रीडर देखा जाए तो जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड यू स्टार्ट टू टेक अ बुक व्हिच इज अबाउट क्लासिकल फिक्शन, तो उसकी लैंग्वेज होती है ना थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो पीपल थिंक थोड़ी कि डिफिकल्ट आगे होती है. सारी भी ऐसी होंगी, नॉवेल्स ऐसी हाँ होती हैं जो समझ में ही या ना, तो लोग उनको छोड़ देते हैं. तो मेरा या बेसिकली ये होता है लोगों को रिकमेंडेशन कि जब आप किताब पढ़ना स्टार्ट करो ना, स्टार्ट विद पॉपुलर फिक्शन या ऐसी कोई जो या जिनकी जो है ना हाँ लैंग्वेज आसान हो, ताकि फिर आसान जब हो. हाँ. आप जब रीडिंग में आ जाते हो तो उसके बाद आसान हो जाता है आपके लिए जो है ना क्लासिकल पढ़ना भी. और ऊपर से बिकॉज थोड़ा सा इंसान डीमोटिवेट भी हो जाता है, बिकॉज पर्सनली क्लासिकल को पढ़ने के लिए आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है. पॉपुलर में थोड़े से वो रेफरेंसेस वगैरह इस तरह के होते हैं और लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल होती है, तो आप पढ़ भी जल्दी रहते हो. बट कुछ लोगों को होता है कि हाई ये बुक है इतनी मोटी है, मैं इतने महीने में खत्म नहीं होगी, तो वो उससे भी डिस्करेज हो जाते हैं. जी और जी. स्पेशली अगर क्लासिकल फिक्शन हो, लिटरेचर हो, तो वो और ज्यादा हो जाते हैं. तो वो अब यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पहले अगर इफ यू So स्टार्ट विद expert पॉपुलर on फिक्शन, reading this. तो देन यू कैन एक्चुअली Yeah. ये One thing I'd like to ask you, ma'am. Yeah, it's या how you take the story once any idea comes to your mind. तो आप उसको कैसे लेके जाते हो, फिर आप कैसे उसको कंटिन्यू करके फिर आप उसको पेन डाउन करते हो? मैं पहले लाइक आई मेक रफ नोट्स इन अ नोटबुक पहले, बिकॉज कुछ राइटर्स का होता है दिस जस्ट स्टार्ट टाइपिंग फॉरन. मेरे से उस तरह भी अक्सर हो जाता है, लाइक अगर कुछ आइडिया इस तरह आ गया जो बिल्कुल क्लियर है माइंड में, तो आई जस्ट थोड़ा There is something wrong with her internet connection. जी मनाल मैम का इंटरनेट कनेक्शन शायद वो सक हो गया. तो जाकिर सर आपकी तरफ चलते हैं कि व्हेन यू राइट अ स्टोरी, तो व्हाट इज योर थॉट बिहाइंड कि आपने एक स्टोरी टेलिंग के आर्ट को मास्टर करना है, उसके थ्रू कोई ओके. कहानी बतानी है, और यू लव टू राइट लाइक जो होती है ना मोरल स्टोरीज होती हैं वो. या सी अगर हम मतलब व्हेन वी रीड द क्लासिकल लिटरेचर, तो उसमें एक मॉरलिटी जो है ना, उसको एक बहुत बड़ी वैल्यू दी गई है. तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम में थोड़ा सा क्या है ना कि वैल्यूज बढ़ जाते हैं. तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे हैं या जो नए नए राइटर्स हैं, अगर वो उसको थोड़ा सा पढ़े, अच्छे से पढ़े पहले,
इट्स देन दे कैन राइट एज वेल। तो कई कुछ राइटर्स ऐसे ना कि वो ना कुछ पढ़ते हैं ना कुछ, डायरेक्टली दे थिंक दैट दे कैन राइट वेल, they are creative, but it is not all about creativity that you will write and you will somebody will call you the writer. Not, it's not necessary. Your writing should depict something and it should have some message for the society and for you as well. When you will go somewhere and your identity will be the book that you have written, or there will be it's all about you, that you are imposing an impression on the society. ठीक है? तो एक आइडिया को लेके जरूरी है कि उसमें थोड़ी सी मॉरलिटी भी हो। हर कोई चीज जो आजकल के जमाने में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा टच देके उसके साथ चले। तो हर कोई जो है ना कि डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, तो कोई चाहता है कि एक ही मतलब एक ही चीज पे अगर एम्फेसिस हो तो उस चीज को लेके चलें। तो कई चीजें ऐसी है कि जो अभी ट्रेंडिंग में है या जिन पे जरूरत है हमें कि उनको एम्फेसाइज करें, तो बेहतर है कि उन सब चीजों को लेके चले। कैरेक्टर्स में कुछ ऐसे कुछ ऐसे सेट करके उनको कुछ ऐसे आइडियाज दे के चलें, सो दैट एवरीबडी विल बी इंटरेस्टेड। और उससे क्या होता है ना, एक तो राइटर का जो है ना उसका माइंड सेट भी पता चल जाता है कि ना ही इज ब्रॉड माइंडेड, ही इज नॉट जस्ट टेकिंग ऑन द सिंगल थिंग। और इसके साथ ये भी हो जाता है कि आपको भी एक मेंटल ब्रॉडनेस आ जाती है। आपको पता Yeah, चल जाता है कि that's कौन true. सी चीज कहाँ पे सेट करनी है आपको, हाउ द प्लॉट शुड बिगिन। इट्स नॉट दैट स्टोरी में सिर्फ एक ही प्लॉट हो। अगर आपका नॉवल है 140 पेजेस, तो उसमें बहुत सारे Mm, प्लॉट्स हो सकते हैं ऑन mm, ऑन चैप्टर बेसिस। तो उससे क्या होता है कि एक इंटरेस्ट रह जाता है हर किसी रीडर का, और हर किसी चैप्टर में आप एक नया नया थोड़ा सा कुछ नया आइडिया डाल के हर किसी राइटर को आप कैच कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। मैम, जैसे प्लॉट की बात की सर ने कि बहुत से ऐसे राइटर्स होते हैं जिनकी पूरी कहानी में कोई एक आधा प्लॉट ट्विस्ट मिल जाए ना, गनीमत होती है। yeah. लेकिन कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं Mm, जिनके अगर आप 10 पेजेस पढ़ो, देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट अगेन, yes, फिर आप yes. 5 Every पेजेस page, पढ़ो। huh? तो दिस हैपेंड टू मी Mm, व्हेन आई वाज रीडिंग द शैडो ऑफ द विंड बाय कार्लोस रुइज ज़ाफॉन। मैंने कभी yeah. कोई ऐसी ट्रांसलेटेड बुक नहीं पढ़ी थी Mm, स्पेनिश लिटरेचर की। तो व्हेन आई mm, रेड हिज बुक, मुझे अंदाजा हुआ कि mm. मिस्ट्री लिखना भी एक आर्ट है। लाइक बंदे Art गॉड है, गिफ्टेड honestly, होते हैं yeah. जो लिखते हैं। तो आपका Yeah. मिस्ट्री के बारे में क्या है कि आप कोई ऐसा मिस्ट्री नॉवल लिखना पसंद करेंगी आगे जिसमें बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट्स होंगे? बट आई फील लाइक उसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट जी ऑफ जी टाइम की ज़रूरत होती है, जो कि लाइक पर मैं आई डू राइट शॉर्ट स्टोरीज जो थ्रिलर्स हैं, बट अभी तक पूरा नॉवल मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज पहले मैं सॉर्ट ऑफ आई वांट टू एक्सप्लोर ये जो रियलिस्टिक फिक्शन कंटेम्प्रेरी फिक्शन है ना, थोड़ा सा आई जी। जस्ट वांट टू लाइक राइट थोड़ा सा लाइक अनदर नॉवल ऑन दिस, और उसके बाद इंशाल्लाह आई डू वांट टू राइट अ मिस्ट्री नॉवल व्हिच इज सेट हियर इन पाकिस्तान। मैम, आपसे अगर आप साइंस फिक्शन क्या पढ़ती हैं? साइंस फिक्शन में आपको इंटरेस्ट है? साइंस फिक्शन में इतना ज़्यादा नहीं है, बट मिस्ट्री और थ्रिलर वगैरह मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। साइंस फिक्शन मैंने पढ़ी है, बट लाइक इतनी ज़्यादा लाइक एक फेवरेट जॉनरा होता है, वो इतना ज़्यादा जी मेरा जी। नहीं है, बट आई फील लाइक उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है। रिसर्च एंड फिर स्टडी, और फिर आपकी अपनी हाँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइंस की। या तो या मैम, आपने उर्दू लिटरेचर भी पढ़ा है, जैसे असमत साहिबा को, फिर मंटो साहब को। तो उर्दू लिटरेचर में और इंग्लिश में ऐसा क्या एक मेन डिफरेंस अगर हम निकालें कि उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो क्या है? आई फील लाइक लिटरेचर जिस भी लैंग्वेज में हो उसका जो कोर जो एलिमेंट है वो तो सेम है, बट आई फील लाइक जिस तरह आप उसको एक्सप्रेस करते हो, जिस तरह आप उसको करते हो, पेन डाउन करते हो, वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज लैंग्वेज का थोड़ा सा आ जाता है डिफरेंस। लाइक उर्दू में आप थोड़े से आई फील लाइक कई जगह फॉर्मल और इनफॉर्मल का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप उनको इंग्लिश में उस तरह आप नहीं जी जी। टू द कोर लाइक जो चीज है वो तो लिटरेचर दोनों में सेम होता है ना। जी मैम, आपको क्या लगता है कि स्कूल्स जो हैं हमारे, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं कि एक बच्चे का जो है माइंडसेट वो राइटिंग की तरफ जाए? क्योंकि आपने स्कूल्स में जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी,
तो वहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। वो रेकमेंड करते थे कि इस राइटर की बुक हम्म। पढ़ो, इस राइटर की बुक पढ़ो, बट उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि आप राइटर बन भी सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि हाँ। स्कूल्स में ये एक वीक पॉइंट नहीं है, वो बच्चों को बताते ही नहीं कि आर्ट भी कोई चीज है? मैम आप क्या रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज वी कांट लिसन यू। जब तक मिनाल मैम का कनेक्शन रिस्टोर होता है सर, आप बताएं कि स्कूल्स जो हैं वो कैसे उन्हें क्या करना चाहिए कि वो बच्चों को आर्ट की तरफ भी, क्योंकि वो बताते ही नहीं है कि आर्ट भी कोई चीज होती है, आप राइटर भी बन सकते हो, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो व्हाट स्कूल्स शुड डू इन दिस केस? या स्कूल्स को क्या है ना कि जो अच्छे राइटर है जो डिपिक्ट करते हैं कि मॉरल वैल्यूज को डिपिक्ट करते हैं, तो ज्यादातर उन राइटर्स को, जो हमारे चिल्ड्रन राइटर्स हैं, तो उनको वो जो है सिलेबस में लाए, उनकी जो राइटिंग है उनको वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करे बुक्स में। तो दैट इज द बेस्ट वे। और क्या है ना कि एक बुक हर किसी घर में पहुंच जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यू विल मीट एवरी पर्सन एंड यू विल मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू। द बेटर थिंग इज टू, अगर आपको लगता है कि कहीं जगह देयर में बी डिफरेंट थिंग्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स है तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो डिफरेंट स्टेट्स में हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास जो वहाँ जो बुक है, लाइक वी है लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस में हमें वो वाले टॉपिक्स उनको भरने चाहिए जो वहाँ से सबसे ज्यादा जरूरी है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट डायनेमिक थिंग जिससे ये सब हो सकता है। दैट्स इट। मेरी भी स्कूल से यही होती है गुजारिश कि आप चाइल्ड नॉवेल्स जो होते हैं ना वो इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि नॉन फिक्शन जब आप पढ़ाओगे बच्चों को, तो नॉन फिक्शन एक तो बहुत ना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उसमें कहानी कोई नहीं होती। तो नहीं देखिए, एक सेकेंड, वन ध्यान थिंग, एक करोगे। फिक्शन जी है जी ना, सर। फिक्शन, फिक्शन में बच्चों के लिए देखिए, मतलब ये सब के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि एक इनोवेटिव थिंग है। फिक्शन में क्या है ना कि आप किसी चीज को भी ह्यूमन कैरेक्टर्स दे सकते हैं, ताकि एक असल में जो मैसेज आपको देनी है ना, लाइक ऑनेस्टी तो बात नहीं कर सकते, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, बट इफ यू विल गिव इट ह्यूमन कैरेक्टर्स, तो एक ऐसा ऐसी चीज है ना, यू कैन use so many मतलब figures of speech and so much devices we have। तो उनको क्या कर सकते हैं ना, जब हम उस चीज को ये दे सकते हैं, हाँ मतलब लाइक बच्चे को हम कहेंगे कि मतलब हाउस इज टॉकिंग, और मून इज टॉकिंग, और सन इज सेइंग समथिंग, तो इससे क्या है ना कि एक मैसेज एक इफेक्टिवली कन्वे होता है। ठीक है, तो दैट्स इट। तो ये सिर्फ फिक्शन में चलेगा, तो नॉन फिक्शन में तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जी जी। दैट्स वाई फिक्शन में ना इसकी कदर बहुत ज्यादा है, और इसका जो क्या बोलेंगे उसको, इनोवेशन इसमें आ सकती है, तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो जी आई मिनाल थिंक मैम, आप क्या कहना चाहेंगी स्कूल्स और राइटिंग के बारे में, स्कूल्स एंड आर्ट, और क्यों नहीं बच्चों को मालूम होता राइटर्स के बारे में? आई फील लाइक स्कूल्स में, जिस तरह आपने कहा, प्रेफर किया जाता है कि नॉन फिक्शन से आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। एंड कुछ सर्टेन एज आती है जहाँ पे आपको एक नॉवल पढ़ने को लाइक कंपल्सरी जी जी। उनके साइड का इंटरनेट कनेक्शन का इशू। what I think we should take her on next session. I think it will not be proper for us because It's first been sentence. it's been a very wonderful conversation with Minal ma'am. Inshallah, we are going to feature Minal ma'am in our gratitude journal as well, or we will be with ma'am inshallah in the next session. So today we are ending this. आज हमने बात की मैम के बारे में, मैम की book Our Tainted Souls के बारे में. It is an amazing book and I will recommend you all to read that. And the gratitude journal जिसमें मैम को फीचर किया जाएगा, तो आप वो भी जरूर पढ़िएगा। एंड इट्स बीन अ वेरी वंडरफुल कन्वर्सेशन। लोगों को पता चला कि राइटिंग, अब देखें मिनाल मैम एक वो नहीं है कि उन्होंने लिटरेचर को लिया, लिटरेचर में उन्होंने कोई मास्टर्स किया या बैचलर्स, नहीं, इट वाज हर पैशन टू राइट। तो उन्होंने अपने पैशन को लेट डाउन नहीं किया। शी इज इनटू बिजनेस, बिजनेस की फील्ड से हैं वो, तो उसके बावजूद भी शी परस्यूड इन हर फील्ड जो उनको करना था। तो मिनाल मैम, आपका हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज यूथ के लिए, देन वी विल एंड द सेशन। Thank you so much for having me.
There is again the internet connectivity problem. So I think we should. Yeah. No, I'm so sorry for it, but thank you so much for having me, and it's been wonderful talking to you guys. अब मेरा normally नहीं होता internet का issue. I don't know आज उसको क्या हुआ. कोई मसला नहीं मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल Yeah. कन्वर्सेशन. आई होप हमारे व्यूअर्स ने बहुत एंजॉय भी किया होगा जो हमारे साथ लाइव थे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे. एंड इंशाल्लाह ये सेशन हमारे पेज पे भी होगा एंड उस पे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा. एंड वी विल गो लाइव विद यू अगेन इंशाल्लाह. एंड एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ बात करना. आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया. एंड Yeah, thank you so जी much. सर जाकिर. Yeah, thank you so much, dear viewers, and Ariba and Miss Minal ma'am as well. It was an honor to talking to you with so much goodness, and I would like to end this session. So let's meet next time. Allah Hafiz, and we'll see you again. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.